हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन 2023 टू 24 के फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए, रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सो द पैसेज इज अबाउट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। Tourists to Jammu and Kashmir have another attraction, a floating post office on the Dal Lake in Srinagar, the first in the country. Floating post office Dal Lake, claimed to be the only one such post office in the world, is built on an intricately carved maroon houseboat fastened on the western edge of the Dal Lake. This post office lets you avail of all the regular postal services available in the country while being afloat. The seal used on everything posted from floating post office is unique. Along with the date and address, it bears the design of boatman rowing a shikara on the Dal Lake. The special feature of the post office is that letters posted from here carry a special design which have a picturesque scenery of Dal Lake and Srinagar city. The pictures reach wherever these letters are posted to and hence promote Kashmir as a tourist destination across the world. This is actually a heritage post office that has existed since British times. It was called Nehru Park Post Office before 2011, but after that the chief postmaster John Samuel renamed it as Floating Post Office. The post office's houseboat has two small rooms. One serves as the office and the other a small museum that traces the philatelic history of the state postal department. It has a shop that sells postage stamps and other products. But for the locals, floating post office is more than an object of fascination. Rupees 1 to 2 crore is deposited per month in floating post office by communities living in and around the Dal Lake. The lake has several islets that are home to more than 50,000 people. The greatest difficulty was the recurrence of 2014 like floods in which the houseboat has gone for a toss uncontrollably pushed by the flood. Rescue teams had to anchor it using physical mechanism to a nearby highland. Then it was brought back to the Dal Lake after the water receded. The biggest boon is that at no time of the year you need a fan in this post office. Okay, now first question is, now note each question carries 1 mark. First question is, where is floating post office situated? So floating post office situated on the Dal Lake in Srinagar. Next is, who renamed the post office as floating post office? वहाँ के जो पोस्ट मास्टर थे before the postmaster John Samuel renamed it as floating post office. Second answer. Now what are the two rooms of the post office used for? दो rooms किस लिए यूज़ किए जाते हैं? तो पोस्ट ऑफिस में दो स्मॉल रूम्स हैं. वन सर्व्स एज अ ऑफिस, एक को एज ऑफिस सर्व करते हैं, दूसरा एक स्मॉल म्यूजियम है जो कि ट्रेस करता है फिलेटेलिक हिस्ट्री को ऑफ द स्टेट पोस्टल डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, हाउ इज़ द पोस्ट ऑफिस हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग टूरिज़्म? पोस्ट ऑफिस टूरिज़्म को प्रमोट करने में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि यहाँ से जितने भी लेटर्स जाते हैं, एक इज़ दैट लेटर्स, यहाँ से जितने भी लेटर्स जाएंगे उनमें एक स्पेशल डिज़ाइन होता है जिसमें एक पिक्चरेस्क सीनरी होती है डल लेक और श्रीनगर सिटी की. ये पिक्चर्स जहाँ पर भी जाती है, जहाँ पर ये लेटर्स को पोस्ट किया जाता है, वहाँ पर लोग इन पिक्चर्स को देखते हैं और इस तरीके से ये कश्मीर का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. सो यहाँ से इसका आंसर होगा, लेटर्स पोस्टेड फ्रॉम हेयर कैरी अ स्पेशल डिज़ाइन विच हैज़ अ पिक्चरेस्क सीनरी ऑफ डल लेक एंड श्रीनगर सिटी एंड दीज पिक्चर्स रीच वेर एवर दीज लेटर्स आर पोस्टेड टू एंड हेंस प्रमोट कश्मीर एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज, हाउ इज पोस्ट ऑफिस अ बिग बून टू द पीपल? एक ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन के अलावा भी वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत, नहीं ये नहीं है, ये बिग बून,
1 to 2 करोड़ डिपॉजिट होते हैं इसमें। अच्छा, बिग बोन ये है कि यहाँ पर पूरे साल में आपको फ़ैन की ज़रूरत नहीं होती है। बिगेस्ट बोन इज़ दैट नो टाइम ऑफ द ईयर यू नीड अ फैन इन दिस पोस्ट ऑफिस। ओके, नेक्स्ट, द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वॉज कॉल्ड ब्लैंक पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011। 2011 से पहले इस पोस्ट ऑफिस को कहा जाता था नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस, नेहरू पार्क। द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज अट्रैक्शन। फैसिनेशन मतलब होता है अट्रैक्शन। नेक्स्ट इज हाउ मच मनी इज डिपॉजिटेड पर मंथ इन फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस बाय कम्युनिटीज लिविंग इन एंड अराउंड डल लेक। जो लोग डल लेक के आसपास रहते हैं वो 1 to 2 करोड़ ऑफ रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं इसमें इन 1 मंथ। सो रुपीज़ 1 to 2 करोड़ आर डिपॉजिटेड पर मंथ, लैक्स 3, 4 to 6। ओके, हाउ इज़ द सील यूज्ड फ्रॉम द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस यूनिक। यहाँ पर जो सील यूज़ की जाती है वो यूनिक क्यों है? क्योंकि यूनिक अलॉन्ग विद द डेट एंड एड्रेस, उसमें एक डिज़ाइन होता है टूरिस्ट राइडिंग का नहीं होता डिज़ाइन। शिकारा में बोटमैन जो रो करता है बोट को, शिकारा को डल लेक में, उसका एक डिज़ाइन इसके ऊपर होता है। तो डेट एंड एड्रेस एंड देन एक डिज़ाइन होता है बोटमैन का रोइंग ऑन अ शिकारा ऑन द डल लेक। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम फॉर द वर्ड इंट्रिकेटली। इंट्रिकेटली मतलब कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। एज अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन यू नोटिस एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑन योगा क्लासेस इन योर नेबरहुड। आपने अपने आसपास कोई एक योगा क्लासेस का ऐड देखा है न्यूज़पेपर में। आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, एक लेटर आपको लिखना है टू द ऑर्गेनाइजर्स, जो उन योगा क्लासेस के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको, इंक्वायरिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और दूसरी रिलेवेंट डिटेल्स को पूछते हुए। आपका नाम स्वप्ना या फिर सुरेंद्र है, ऑफ 60 RK पुरम, न्यू दिल्ली। सो ये फॉर्मेट है। सबसे पहले आपका एड्रेस 60 RK पुरम, न्यू दिल्ली, पिन कोड, डेट जब आप लेटर लिख रहे हैं, टू द ऑर्गेनाइजर्स योगा क्लब RK पुरम, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट योगा क्लासेस। रिस्पेक्टेड सर और मैम, आई एम स्वप्ना घोष एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. I saw your advertisement regarding yoga classes in newspaper and I would like to know the details about this matter offered by you. As a health conscious person, I want yoga classes to be arranged every morning. Yoga not only an exercise of the body, it is also of the mind fresh activity. It is also an mind fresh activity. So I wanted a needful yoga classes for me. I am very interested to join these classes as this is the need of the unhealthy society today. Kindly send me your details about fees, timings, time duration and courses offered at the address given above. Thanking you sincerely and last में आपका नाम। या फिर इसके और में क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू दिल्ली स्पोर्ट्स, दरियागंज, न्यू दिल्ली, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट बॉल्स, टेनिस बॉल्स एंड क्रिकेट बैट्स टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल. साइन एज रवि और रवीना, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. तो सबसे पहले स्कूल का नाम, जिस स्कूल के आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, डेट जब आप ये लेटर लिख रहे हैं, द मैनेजर दिल्ली स्पोर्ट्स दरियागंज न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स. सर, I wish to place a bulk order for the supply of sports articles and equipments for the school for academic session 2023 to 24. It is requested that the following sports goods must be delivered latest by August 5. जब आप लिख रहे हैं लेटर, उसके बाद की कोई डेट आप दे देंगे. The particulars of the sports equipments and their quantity to be supplied are given below. नीचे ये पर्टिकुलर्स नाम आपने लिखे हैं, कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए. देन काइंडली गिव अस मैक्सिमम डिस्काउंट. डू सेंड अस द स्पोर्ट्स गुड्स इक्विपमेंट्स फ्रॉम द फ्रेश लॉट. द पेमेंट ऑफ दीज गुड्स इक्विपमेंट्स विल बी डिजिटली मेड. द गुड्स डिलीवर्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. योर्स ट्रूली. नीचे आपका नाम रवीना, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ABC स्कूल.
Now next is attempt any one of the following in 100 to 120 words. ये एक पाई चार्ट गिवन है. ग्लोबल वेदर इज वार्मिंग लीडिंग टू आर्कटिक मेल्टडाउन. स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड राइट अ ब्रीफ पैराग्राफ ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग इन अबाउट 100 वर्ड्स. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में 100 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है. या फिर स्टडी द चार्ट बिलो. ये एक चार्ट गिवन है. विच इज़ द रिजल्ट ऑफ सर्वे कंडक्टेड इन पब्लिक स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ वडोदरा. दिस डिपिक्ट्स द टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ द टीनेजर्स 13 to 19 ईयर्स के जो बच्चे हैं इन्वॉल्व ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम. कंप्लीट द समरी इन अबाउट 80 वर्ड्स. तो कितने बच्चे टीवी देखते हैं, नेट सर्फिंग, सेलफोन एंड फ्रेंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रामर के क्वेश्चंस हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज देयर आर प्लेंटी ऑफ टमेटोज इन द फ्रिज. फ्रिज में बहुत सारे टमेटोज हैं. यू ब्लैंक बाय एनी. You must not, may not, you need not to buy any. B option is correct. Nina said, I may leave tomorrow. So Nancy said that she might leave tomorrow the next day. Nancy said that she might leave the next day. Next is Radha as well as her sisters blank going for a trip. Radha as well as her sisters, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, तो जो वर्ब है हमारी वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगी. राधा एज वेल एज हर सिस्टर्स इज़ गोइंग फॉर अ ट्रिप. अगर इसमें एंड होता राधा एंड हर सिस्टर्स तो फिर आ रहा था. अभी एज वेल एज हर सिस्टर इज़ गोइंग फॉर अ ट्रिप. बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट 10 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस. 10 miles एक लॉन्ग डिस्टेंस है. इज़ Rahul said to me, I will manage hereafter. So Rahul told me that he would manage thereafter. Rahul told me that he would manage thereafter. Said to me, Rahul told me that he would manage thereafter. C option is correct. Now rearrange the following jumbled words or phrases to make meaningful sentences. Inside grandeur, the palace hall, it was all. Palace hall, grandeur मतलब बहुत बड़ा, impressive. So the palace hall, no, it was all grandeur inside the palace hall. लिख देंगे आप इसको. नेक्स्ट interwoven मतलब बीच में वीव किए हुए pearls, मोती वर flower garlands sparkling with. So flower garlands were sparkling with interwoven pearls. Next, wooden stage painted back cloth the decorated with a walls. So the wooden stage was decorated with a painted black cloth. Number 6. Extremely that of grief, it is a matter unkindly animals are exploit. So it is a matter of grief that animals are exploited extremely unkindly. Next is killed, they are beaten, chained and mercilessly trained. They are beaten, chained या chained and beaten. They are chained, beaten and trained. Number 4. And mercilessly बिना किसी दया के mercilessly killed. Okay. Now next is section C, literature. Read the extract and answer the questions asked below. Some say the world will end in fire, some say in ice. From that I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay. Which emotion does the fire represent? Fire कौन सा emotion represent करती है? Bravery, happiness नहीं. Indifference, ice करेगा anger. First option is correct. Which emotion does the ice represent? Ice represent करता है indifference को, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता. Which word does not relate to desire?
डिज़ायर से कौन सा वर्ड रिलेटेड नहीं है? विश, फैंसी, अनवांटेड, डिमांड, अनवांटेड. द फ्रेज आई होल्ड विद दोज मीन्स, आई होल्ड विद दोज मतलब आई अग्री विद दोज. डिसअग्री, ग्रैब, आई सपोर्ट देम. डी ऑप्शन इज करेक्ट. Next is answer any 3 questions in 20 to 30 words. Why and how did postmaster help Lencho? पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प कैसे की और क्यों की? उसने उसकी हेल्प की थी मनी को कलेक्ट करके और उसे गॉड के नाम से उसे सेंड करके. और क्यों की? क्योंकि वो चाहता था कि उसका जो फेथ है गॉड में वो ख़त्म ना हो. प्लस जो पोस्टमास्टर था वो बहुत ही काइंड, जनरस और हेल्पफुल पर्सन था. आंसर आप लिखेंगे द पोस्टमास्टर वॉज a kind, generous and helpful person. He did not want to shake Lencho's faith in God. So he helped him. He helped or replied to Lencho's letter by sending him money under the name of God. He collected money and replied to Lencho's letter by sending him money under the name of God. Next is justify Lencho's act. Call the post office employees a bunch of crooks. जो लेंचो ने कहा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है बंच ऑफ क्रुक्स है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि लेंचो ने गॉड से 100 पैसोज मांगे थे और उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसको भेजेंगे ही. जब उसने लेटर में देखा पोस्टमास्टर क्योंकि 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाया था, तो उसको लगा कि 30 पैसोज इनके एम्प्लॉयज़ ने रख लिए हैं, क्योंकि उसको पूरा फेथ था कि जितने उसने मांगे हैं उतने ही जो गॉड है ही विल सेंड. तो इसीलिए उसने एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रुक्स कहा. सो व्हेन लेंचो ओपन द envelope, he found only 70 pesos instead of 100. He doubted that the post office employees had taken 30 pesos because he had complete trust in God. He thought that if he wrote a letter to God asking for money, अगर उसकी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय कर दिए हेलस्टॉर्म ने, 100 पैसोज उसने मांगे हैं तो 100 ही गॉड भेजेंगे. तो उन्होंने 100 ही भेजे होंगे, मुझे 70 मिले क्योंकि 30 उन्होंने रख लिए हैं. सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रुक्स. नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्चुअली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इन रेफरेंस टू ट्रिकी, वाई नॉट. तो बिल्कुल ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी थी क्योंकि ट्रिकी की जो रिकवरी थी, इलनेस बहुत ही सीरियस थी, वो बिना मेडिसिन के इम्प्रूव होने के उसके चांसेस ही नहीं थे. और क्योंकि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के वो रिवाइव हो जाता है, तो ये एक अचीवमेंट के जैसा ही था. सो ट्रिकीज रिकवरी, ट्रिकी रिकवरी was a triumph of surgery because his illness was very serious and there were very few chances of Tricky to improve. And he needed immediate medical attention. So his revival without any medical treatment
is a great achievement. Okay. Now next is the poem Dust of Snow evokes a sense of black and white justify. Dust of Snow कैसे एक सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट को इवोक करती है, क्योंकि पोएम में जो स्नो है वाइट है कलर में, एकदम से क्रो आता है जो कि ब्लैक था, और पोएट का जो हार्ट है वो भी एकदम ब्लैक डार्कनेस से भर जाता है. फिर उसके ऊपर स्नो गिरती है जिससे उसके मूड में चेंजेस होते हैं, डार्कनेस वानिश हो जाती है. तो इस तरीके से ये एक सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट को इवोक करता है. सो द पोएम हैज़ snow which is white, and suddenly a crow appears which is black. So the poet's heart is also filled with blackness, with darkness. But when the snow falls on him, there is a change in his mood, and the darkness vanishes. So the poem Dust of Snow evoke a sense of black and white. Okay, that's all students. ये था 10th class English का एक question paper. Thank you so much for watching.